स्टूडेंट्स आज ਅਸੀਂ न्यू टॉपिक स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। लास्ट we did linear programming problems ਦੇ ਵਿੱਚ how we can find out optimal solution with the help of linear programming problems. There were different methods, simplex method, graphical method, duality method. Now we will start transportation problems. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स मेनली की है कि वी वांट टू मीट द डिमांड इन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सपोज मेनली की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहती है। सपोज वी हैव डिफरेंट सप्लाई पॉइंट्स। ये 3 सप्लाई पॉइंट्स हैं। ये 3 सप्लायर्स को सपोज डिफरेंट क्वांटिटीज़ अवेलेबल है। फर्स्ट सप्लाई पॉइंट ते वी हैव 40 क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स ਅਸੀਂ सप्लाई करना चाहते हैं वो वाले गुड्स की क्वांटिटी साढ़े को 40 है। सैकेंड सप्लाई पॉइंट ते सेम गुड की क्वांटिटी अवेलेबल 25 है एंड थर्ड सप्लाई पॉइंट ते अवेलेबल क्वांटिटी 35 है। जो डिमांड पॉइंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग थावां ते वो कितनी है। फर्स्ट डिमांड पॉइंट ते 30 दी है। सेकेंड डिमांड पॉइंट ते वी हैव सपोज 30 यूनिट्स ऑफ रिक्वायरमेंट 30 रिक्वायरमेंट एंड इन थर्ड डेस्टिनेशन वी हैव 40 रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिट्स। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ 40 ਤੋਂ 40 ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। that we have to meet the different requirements based upon different supply points, keeping in mind the overall cost okay होनी चाहिए, minimum होनी चाहिए। So in transportation mainly we have an objective in the mind that we want minimum possible transportation cost। clear? So इधर वही लिखा है प्रॉब्लम की है साडी हाउ कैन वी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सप्लाई पॉइंट्स टू द डिमांड पॉइंट्स वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ मिनिमम। इन होल what we want is कि साडी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। now in this we have different methods to find out the solution of this problem। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ we have different methods ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Basically we are going to discuss 2 types of methods for determination of initial or starting solution, initial or starting feasible solution, then methods to test for optimality whether that method is optimal or not। Firstly we are going to discuss initial or starting solution solving methods। initial solution find out currently we have 3 main methods। northwest corner method or we can say northwest corner rule, then is least cost method or we can say minimum cost method, and third method is Vogel's approximation method, we also call it as VAM or penalty method। first we will discuss northwest corner rule or northwest corner method। ये method किस लिए है, transportation cost find out करने लिए। that solution will be known as initial or starting feasible solution। so ਅਸੀਂ first type of method discuss ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। first type the first method ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ northwest corner method। now suppose it is very easy। northwest corner rule ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ that we have to start from the northwest corner। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਡ 3 ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ and 3 demand points।
ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 3 ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇਹ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 8 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਵ 8 ਕੋਸਟ, ₹8 ਕੋਸਟ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ 8। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਰੋਜ਼ 'ਤੇ नेटवर्क जो बनाया है, जो एरोज है, ये ऊपर जो कॉस्ट लिखी है, ये ऊपर जो नंबर्स लिखे दैट इज कॉस्ट। हुण ये तो नेटवर्क सी, इनू ही असी टेबल के फॉर्म में लिखा है। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि फाइंड आउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट विल बी मिनिमम। हुण इत्थे सानू कोई दिता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल, ये मेन टेबल है। ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਨਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then per unit cost is 8। ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਟॉप ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦਾ cost in the corners, demand on the bottom and supply on the right side। now ਹੁਣ ਅਸੀਂ स्टार्ट कितों होना है, कितों एलोकेट करना शुरू करना है, रूल तो ही पता लग रहा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मतलब असी नॉर्थ वेस्ट तो शुरू होना है, असी टॉप कॉर्नर तो स्टार्ट होवांगे। सो नाउ सी साडे कोल अवेलेबल यूनिट्स कितनी है, सप्लाई यूनिट्स कितने हैं 40, डिमांड कितने 30। एक रूल की ध्यान विच रखना है कि वी हैव टू एलोकेट मैक्सिमम, असी मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई करना है फ्रॉम मिनिमम ऑफ द टू। मिनिमम ऑफ द टू का मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। असी मैक्सिमम एलोकेट करना है अमंग द टू फिगर्स दैट इज़ फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि इधर साडे कोल डिमांड है 30 यूनिट्स की, साडे कोल अवेलेबल कितने यूनिट्स है 40। सो जिन्नी इन्हां दी डिमांड है उन्नी असी पूरी कर सकते हैं। सो मैक्सिमम वी कैन एलोकेट 30 बिकॉज इन्हां दी डिमांड ही 30 है। सो इधर असी कितना एलोकेट कर देंगे 30। सो फर्स्ट कॉलम विच साडे कोल 30 यूनिट्स की डिमांड सी, 30 ही इथों फर्स्ट सप्लाई पॉइंट तो फुलफिल हो गई। सो इत्थे कितनी रहेगी 40 विचों असी 30 सप्लाई कर देते, वी आर लैफ्ट विद ओनली 10 यूनिट्स ना। तो इधर की है 30 दी ही रिक्वायरमेंट सी, 30 इन्हां नूं मिल गए। सो ये वाले कॉलम विच हुण असी कुछ भी एलोकेट नहीं करना बिकॉज इत्थे रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। इन्हूं असी डॉटेड लाइन नाल या फेडेड लाइन वो कर देंगे ताकि मिसटेक ना हो जाए, इधर गलती नाल दोबारा तो एलोकेट ना कर दईए। नेक्स्ट फर्स्ट इज फुलफिल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। सो हुण ये वाला बॉक्स रह गया, इधर नॉर्थ वेस्ट केड़ा टॉप कॉर्नर ये वाला है। नाउ हियर द डिमांड इज 30 बट वी हैव ओनली 10 यूनिट्स इन द स्टॉक। साडे कोल सप्लाई असी कितना सप्लाई कर सकते हैं 10 यूनिट्स, डिमांड कितनी है 30। मैक्सिमम पॉसिबल असी एलोकेट करना है फ्रॉम मिनिमम ऑफ द टू बिकॉज 10 ही अवेलेबल है। सो असी इधर 10 एलोकेट कर देंगे। क्लीयर। सो इहदे अकॉर्डिंगली 30 की डिमांड सी, 10 दी पूरी हो गई। हुण साडे कोल सिर्फ 20 यूनिट्स की ही डिमांड रह गई। इधर 10 यूनिट्स बाकी से सप्लाई करन लई ते 10 यूनिट्स असीं सप्लाई कर दिते। सो इधर सप्लाई नहीं कर सकते, होर क्वांटिटीज़ नहीं है हुण साडे कोल। सो
जो लास्ट कॉलम है उत्थे भी असी लाइन ड्रॉ कर देंगे बिकॉज इथों होर यूनिट सप्लाई नहीं हो सकदियां वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स नेक्स्ट साडे कोल ये नीचे वाला पोर्शन रह गया इथों असी की देख रहे हाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर दे अकॉर्डिंगली ये वाला सैल आएगा 20 यूनिट्स डिमांड है 25 अवेलेबल है मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेट करना है फ्रॉम मिनिमम ऑफ द 2 जिन्नी डिमांड है उन्ना जो साडे कोल सप्लाई है तो असी एलोकेट कर देंगे 20 दी डिमांड है यूनिट्स किनियां पईयां साडे कोल 25 सो इधरों ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं 20 यूनिट्स इहदे नाल की होया 25 विचों 20 सप्लाई कर दिते साडे कोल 5 यूनिट्स रह गई ये वाले सप्लाई पॉइंट ते ये वाले सैल दी ये वाले कॉलम दी पूरी डिमांड होगी साडी सो इधर असी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी क्लियर नाउ दीज टू सेल्स आर लेफ्ट टॉप कॉर्नर तो शुरू होना है 2 ही है इधर साडे कोल डिमांड कितनी 40 दी मैक्सिमम अवेलेबल क्वांटिटी सप्लाई करनी है फ्रॉम मिनिमम ऑफ द 2 मिनिमम कितना है 5 40 दी सप्लाई है बट अस मैक्सिमम कितना एलोकेट कर सकते हैं 5 सो अस इत्थे 5 एलोकेट कर देंगे फाइव एलोकेट कर दिता उहदे नाल की होया ये भी खत्म हो गया एक ही सेल रह गया इधर 5 एलोकेट 5 दी डिमांड ऊपर पूरी हो गई सी 35 हुण 35 दी ही सप्लाई पई है साडे को 35 सप्लाई यूनिट कोल यूनिट्स पई हैं ते 35 दी ही डिमांड है सो सारे दा सारा इत्थे एलोकेट कर दांगे इहदा जो तुसी टोटल करोगे इट विल बी 4 3 7 8 9 10 100 ये साडी बैलेंस्ड प्रॉब्लम सी जिहदे विच डिमांड ऑफ यूनिट्स व इक्वल टू सप्लाई ऑफ यूनिट्स जिन्ने साडे कोल यूनिट्स की डिमांड सी उन्नी ही साडे कोल सप्लाई पई हुई सी सो इट इज़ नोन एज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम जे साडे कोल डिमांड ते सप्लाई इक्वल ना होंदी दैन सानू डमी वेरीएबल इंट्रोड्यूस करना पैना सी टू मेक डिमांड इक्वल टू सप्लाई होप सो क्लीयर नाउ नेक्स्ट इज हुण इथों असी ये फाइंड आउट करना है कि साडे कोल ए फिजिबल सोल्यूशन आया है कि नहीं आया ये असी किवें फाइंड आउट करांगे असी ये देखांगे कि जिन्ने जिन्ने डिमांड सी उन्नी फुलफिल हो गई कि नहीं हुई जिन्ने सप्लाई से वो सारा सप्लाई हो गया कि नहीं प्लस सानू कॉस्ट किन्नी पई पहले असी देखांगे इत्थे 30 + 10 40 जिन्ने सप्लाई सी वो असी कर दिता 20 + 25 25 दी ही सप्लाई सी 35 दी ही इत्थे सप्लाई यूनिट को यूनिट सीगे इधर 30 दी डिमांड्स 30 फुलफिल होगी 20 + 10 30 दी डिमांड्स इत्थे फुलफिल होगी 35 + 5 40 सो रो टोटल इज इक्वल टू सप्लाई कॉलम टोटल एंड कॉलम टोटल इज इक्वल टू डिमांड्स रिक्वायर्ड डिमांड्स सो ये फिजिबल है प्लस ए बैलेंस प्रॉब्लम है नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट कि जिन्ने भी असी एलोकेशन की है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 है हम जो 1 2 3 4 5 ये 3 सेल्स की जो एलोकेशन है इट इज़ पॉजिटिव प्लस ये जो ए वाला सेल है x21 x31 x32 ਇਹ ਕਿਹੜਾ x13 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੋਟਲਸ ਦੇਖੇ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किवें फाइंड आउट करांगे असी सो इधर असी कैलकुलेट कर लांगे कॉस्ट एसोसिएटेड इज इक्वल टू ए वाले रूल दे अकॉर्डिंगली ए वाली चेन दे अकॉर्डिंगली ए वाले एलोकेशन दे अकॉर्डिंगली सानू कितनी कॉस्ट पई है वो फाइंड आउट करांगे इट विल बी 8 × 30
प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस नीचे लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 35. सो इट कम्स आउट टू बी ये आ जाएगी साड़ी 625 की आई कि ये साड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पई जैसे ए वाला एलोकेशन मैथड यूज़ करते हैं. दिस मैथड वॉज नोन एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. इस मैथड का फोकस की रहा सी पोजीशन ते कि इस पोजीशन तो स्टार्ट करो टॉप कॉर्नर तो स्टार्ट करो ते अकॉर्डिंगली अगे अगे एलोकेशन करी जाओ. So this was the first rule or first method. Next method is least cost or minimum cost method. North west corner rule which साडा फोकस की सी कि असी नॉर्थ वेस्ट तो शुरू होना है जेडे जेडे कॉलम से जेडे जेडे रोज दी हो जाती है उस तो बाद वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ते उहदे अकॉर्डिंगली एलोकेशन करनी. बट नेक्स्ट इज लीस्ट कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट मेथड. नाम तो पता लग रहा है कि लीस्ट कॉस्ट मेथड की है कि वी हैव टू एलोकेट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट कॉस्ट. सो इस मेथड विच असी एलोकेशंस एवें करनी है उतों स्टार्ट करनी है जिथे वी हैव लीस्ट कॉस्ट. सेम एग्जाम्पल लीए 40 25 and 35 सप्लाई available है and demand is of 30 and 40 units. This is also a balance problem because supply is equal to demand. जिन्नी demand है उन्ने ही साडे कोल supply units available है. start असी कितों होना है least cost तो. so असी find out कर लांगे कि least cost केड़े सेल दी है. इथे least cost है इथों start करांगे. now we have available quantity of 25 and demand is of 30 units. maximum possible units supply करनी है keeping in mind the minimum of 2. जिन्नी डिमांड है 30 उन्नी साडे कोल यूनिट्स ही नहीं अवेलेबल बट मैक्सिमम असी कितना सप्लाई कर सकते हैं 25 जिन्नी साडे कोल यूनिट्स अवेलेबल है. सो 25 दी 25 एलोकेशन इधर हो जाएगी. जदों असी ए वाले सैल विच एलोकेशन की सानू इथों की पता लग्या कि इधर साडी सप्लाई एग्जॉस्ट होगी होर ए वाले पॉइंट तो असी सप्लाई नहीं कर सकते. सो सेकेंड रो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ 30 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 25 ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਓਨਲੀ 5 ਯੂਨਿਟਸ. ਸਾਨੂੰ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ. ਇੱਥੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ. ਨੈਕਸਟ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ 5. ਵੈਸੇ 4 ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੇ पॉइंट ते नहीं एलोकेशन कर सकते बिकॉज इत्थे सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है. सो इधर किन्नी सप्लाई करांगे डिमांड इज 5 सप्लाई यूनिट साडे कोल पई 35 मिनिमम ऑफ 2 मैक्सिमम एलोकेट करना है बट इधर रिक्वायरमेंट ही 5 यूनिट्स दी है. सो अकॉर्डिंगली वी विल एलोकेट 5 यूनिट्स. इधर जो 5 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे सो इधर ए वाले कॉलम की डिमांड फुलफिल हो गई. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 30 यूनिट्स है. इधर साडे कोल हुण 30 यूनिट्स रह गए जो असी सप्लाई कर सकते हैं. इधर साडे कोल कितनी डिमांड से सैकेंड कॉलम विच 30 सी 25 इथों फुलफिल हो गई 5 इत्थे फुलफिल हो गई. सो इधर असी डैश लगा देंगे. नैक्सट अगला असी हुण फाइंड आउट करांगे लीस्ट कॉस्ट किहड़े सैल विच है फ्रॉम 8 7 8 एंड 6 है. इधर असी हुण वही सेम देखांगे. अवेलेबल क्वांटिटी इज 30 डिमांड 40 दी मैक्सिमम पॉसिबल सप्लाई करना है कीपिंग इन माइंड द मिनिमम ऑफ 2 मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फिगर्स. मैक्सिमम असी कितना सप्लाई कर सकते हैं 30 डिमांड कितनी है 40. सो 30 तो 30 यूनिट्स इत्थे सप्लाई हो जाएंगे. जो 30 यूनिट्स इत्थे सप्लाई हो गए इत्थों असी की देखा कि इधर सप्लाई एग्जॉस्ट होगी. सो इधर असी डैश लगा देंगे तो इधर की है वी आर लेफ्ट विद डिमांड ऑफ ओनली 10 यूनिट्स. सो हुण सानू सिर्फ इधर 10 यूनिट्स ही लोड है थर्ड कॉलम विच. नैक्सट सेम
प्रोसीजर मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करांगे। हुण साडे कोल सिर्फ 2 सैल्स रह गए 8 एंड 7। 7 लोएस्ट है, सो इधर वी वांट 10 यूनिट्स। सप्लाई किन्ने दी हैगी 40 दी, सो इधर जिन्नी रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई कर दांगे। देन हेयर वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 30 यूनिट्स। ये वाले सप्लाई पॉइंट को 30 यूनिट्स रह जाएंगियां। ये वाले कॉलम की डिमांड फुलफिल होगी। इत्थे 30 असी देते सी, इत्थे 10 देते, सो टोटल डिमांड किन्नी सी 40। इन द लास्ट वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 सैल, इको ही सैल रह गया। उत्थे रिक्वायरमेंट किन्नी रह गई साडे कोल 30, बिकॉज उधर असी कुछ भी एलोकेशन नहीं की हुई, सो 30 ही साडे कोल सप्लाई विच यूनिट्स अवेलेबल है, तो 30 दी ही डिमांड है। जिन्नी डिमांड है उन्नी ही सप्लाई है, सो सारे दे सारे यूनिट्स असी इत्थे एलोकेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द लीस्ट कॉस्ट मैथड। दोनों मैथड्स विच की फर्क है, इत्थे असी लीस्ट कॉस्ट सैल विच एलोकेशन करनी है। स्टार्ट भी लीस्ट कॉस्ट तो होना है, फिर जो रिमेनिंग सैल्स रह जाएंगे उहदे विचों वी नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉस्ट, तो उत्थे एलोकेशन करनी है। नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट एसोसीएटेड। हुण ये वाली मैथड के अकॉर्डिंगली जे असीं एलोकेशन करते हैं, जे एवें सप्लाई करी यूनिट्स लीस्ट कॉस्ट मैथड के अकॉर्डिंगली, तां सानूं कितनी कॉस्ट पई। सो कॉस्ट एसोसीएटेड विल बी सेम ही होएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 30, बिकॉज 8 वॉज द पर यूनिट कॉस्ट। सप्लाई पॉइंट जिहड़ा ये वाला सप्लाई पॉइंट है, इन्हें सानू 30 यूनिट सप्लाई करने कीते हैं, सो 8 इंटू 30 हो जाएगा। बिकॉज ये जो कॉर्नर्स विच असीं लिखे हैं पर यूनिट कॉस्ट है। जिन्नी यूनिट्स सप्लाई होणगियां, जिन्नी यूनिट्स असीं लईआं होणगियां, जिन्नी यूनिट्स दी डिमांड होएगी, उहदे अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट उस पर्टिकुलर सैल दी बन जाएगी। 8 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 5 plus 6 into 30, it will come out to be 590. So it will come out to be 590। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਸੇਮ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸੇਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਈ ਸੀ 625, बट इत्थे सानू कॉस्ट पै रही ओनली ₹590। सो बिकॉज ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम विच उही सल्यूशन गुड हुंदा है जिहदे विच वी हैव मिनिमम कॉस्ट। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट लीस्ट कॉस्ट मेथड हैज़ गिवन अस मोर फिजिबल सल्यूशन, मोर गुड फिजिबल सल्यूशन दैन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ज़रूरी नहीं है कि लीस्ट कॉस्ट मेथड हमेशा ही सानू घट कॉस्ट देगा, बट इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल फाइंड इट दैट लीस्ट कॉस्ट मिनिमम और लीस्ट कॉस्ट और द मिनिमम कॉस्ट मेथड विल गिव अस द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ये दोनों मैथड्स का फर्क की है, इन्हें क्यों लीस्ट कॉस्ट देते, बिकॉज ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟੌਪ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਇਨ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੇਕ ਇਨ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦ यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लीस्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन मैथड विच असी मिनिमम जो यूनिट कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन दी ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Is it clear? So the main difference is it focused on the unit cost at the time of making every allocation, but the northwest corner rule focused only on the position while allocating the units. So these were the two methods. Next method, Vogel approximation method or the penalty method, will be discussed in the next lecture. Thank you.